हाँ सर। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज क्या है? आज क्या है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की चलिए चलिए। जय। आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। देश में मर मिटने वालों की जय, देश में मर मिटने वालों की जय। वंदे वंदे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अन्य जहां का हमने खाया, अन्य जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वस्त्र जहां के हमने पहने। वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। संकलन जी, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं मुल्क की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल हर घड़ी घड़ी। आग ले चलो, चिराग ले चलो, ये मस्तियों में रंग भरे बाग ले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफान के झोंकों का क्या असर। ये कौन आ रहा, अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिलें उठा रहा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। Teachers and my dear friends, I extend my warm greetings on completing the 75 years of freedom of India. As we celebrate it with joy and fervor, we also need to pay tribute to those who fought tirelessly to achieve the freedom, and those who shaped the destiny with vision and wisdom. As India discovers herself again, we need to augment on the value system. We also need to come together to develop a nation of harmony, peace, and development. We need to build a legacy that is free from prevalent negativity, free from oppression, and free from prejudice and corruption. Our preamble to the Constitution says, "We the people, not I." The journey from I to we, in my mind, is the journey of triumph, of progress, and advancement. Rabindranath Tagore had dreamed of this destiny in Gitanjali for young India, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has never been broken up into fragments of narrow domestic walls, where the word comes out from the depth of the truth. We need to work constantly on realizing and pursuing the goals individually in order to be collectively responsible. Our beloved former President APJ Abdul Kalam Sahab had poignantly directed us to ponder on how to shape young ignited minds, and I quote him, "If a country is to be corruption-free and become the nation of beautiful mind, I strongly feel that there are three societal members that can make a difference. They are the father, the mother, and the teachers." In his typical style, he reminds us of our responsibility towards children, the inheritance that we all can live with. A school is more than an institution of learning. It is a temple that educates younger generations, molds its characters,
create a new intellectual leader, and build an integrated self. So as future teachers, we need to imbibe these words, nurture and impart the treasure of knowledge to students. We need to absorb new ideas and learn to be diligent and focused. As a DITE family, we will put our individual and collective efforts in nation building. Let us all pledge dedication, commitment, patriotism on the road to progress and development. Not just today, but all time to come. The Independence Day just be a reminder of all of us. While celebrating Independence Day, we also need to pledge to liberate ourselves from the dark colonies of factionalism, sectarianism, and divisive politics. On this day, we must remind ourselves of sacrifices, dedication, and the nationalistic fervor of our freedom fighters. To all the leaders who have given a direction to our nation, the leaders who I see as an entrepreneur, who have actually molded the advancement and progress we see today in our society. As DITE family, we must take pride in ourselves, being a member of an institution that have played an important role in the education system of Uttarakhand. Today, we must pledge to refashion the country's intellectual boundaries with the value and cultural diversity that India is known for. Let us resolve to excel in the field of knowledge, fulfill our own dreams, the dreams of our parents, and the dreams of our teachers. Thank you. Jai Hind and Jai Uttarakhand. सेणी खाणी हर चीजा सुध बुध नीराईजा सेणी खाणी हर चीजा एजादी बॉडी रोड़ी दौड़ी बारी खुद लगी चा तेरी एजादी बॉडी रोड़ी दौड़ी बारी खुद लगी चा तेरी फूल फूल सुख गैन काबली बसंत के चली गैन काबली काबली हो फूल फूल सुख गैन काबली बसंत के चली गैन काबली ऋतु गैनी तू नी आई कौथिक बीरैनी तू नी आई क्यों नी आई क्यों नी आई सच्ची बनू जो त्यारे सो बारी खुद लगी चा तेरी एजादी बॉडी रोड़ी दौड़ी बारी खुद लगी चा तेरी दिन लगना छिन मैना काब आली बरस लग दिन जुग काब आली काब आली हो दिन लगना छन जैन काब आली बरस लग दिन जुग काब आली रूड़ों का घाम मिन बहुत तापीन यूं का जाडा मिन बहुत सैन तू नी आई क्यों नी आई सच्ची बनू जो प्यारे सो बारी खुद लगी चा तेरी एजादी बॉडी रोड़ी दौड़ी बारी खुद लगी चा तेरी कख अलजी रह गे तू कब अली कन निर्दय गे तू कब अली कब अली हो कख अलजी रह गे तू कब अली कन निर्दय गे तू कब अली थक गेन आखी बाटू हेरी हेरी निरसे गे चिकड़ी
जगवाल कैरी कैरी तू नी आई क्यों नी आई सच्ची बोनू चो त्यारे सो बारी खुद लगी चा तेरी एजादी बॉडी रोड़ी दौड़ी बारी खुद लगी चा तेरी एजादी रोड़ी रोड़ी दौड़ी बारी खुद लगी चा तेरी। धन्यवाद। अमन से भरा ये वतन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ चुकाऊंगा मिट्टी का कर्ज, जब तक जिंदा हूँ चुकाऊंगा मिट्टी का कर्ज, और मरूं तो बस तिरंगा कफन चाहिए, और मरूं तो बस तिरंगा कफन चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रशांत, सौरभ, अभय, अनवीर, अर्जुन समूह की सुप्रभात। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज हम उत्तराखंड राज्य को जो बने हुए 22 वर्ष यहाँ पे हो गए हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। उसके बाद हम आज़ादी के जो माहौल में जी रहे हैं उसमें एक राज्य गीत की बहुत ज़रूरत थी, जिसे 2015 में जो है राज्य गीत को ये बहुत सारे लोगों के सुझाव और हेमंत बिष्ट की लास्ट में जो ये जो रचना है उसको जो है हमारा राज्य गीत बनाया गया। और उस राज्य गीत को गाने का मकसद ये था कि हमें अपने राज्य में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी हमारे त्योहार हैं या जो हमारी संस्कृति है उसको हम जानें। और इसी का मकसद था कि हम अपने राज्य गीत को जो है और राज्यों के राज्य गीत की तरह ही एक पहचान बनाए। तो इस राज्य गीत को हम शुरू करेंगे। उत्तराखंडी राज्य गीत, ये हमारे जो गढ़वाली गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी ने और पौडवाल जी ने इसको गाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना श्रम रंजित तेरा कण कण, अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। गंगा यमुना तेरा चल, दिव्य हिमालय तेरा शीश। सब धर्मों की छाया तुझ पर, चार धाम देते आशीष। श्री बद्री केदारनाथ है कलियर हिमकुंड अति पावन, अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। अमर शहीदों की धरती है, हाथी वीर जवानों की। आंदोलनों की जननी है ये, कर्म भूमि बलिदानों की। फूल फले तेरा यश वैभव, तुझ पर अर्पित है तन मन, अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। रंग
अभिनंदन अभिनंदन उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन कस्तूरी मृग ब्रह्म कमल है फ्योली बुरास दुगुदी मोनाल रुम झुम झूमे लो ढोल नगाड़े दमुआ उड़का रण सिंगा मुरली सुनता जागर हारुड धरा झुमेलो ज्वार चपेड़ी पांडव निर्धन अभिनंदन अभिनंदन उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन शत शत वंदन अभिनंदन। थैंक यू। मेरे शिक्षकगण और मेरे मित्र शिक्षक प्रशिक्षु, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर एक गढ़वाली गीत पेश करना चाहूँगी, जिसमें जो है एक बेटी अपने मायके को याद करती है, जिस गाने की गीत है घुघुती घुरौन लगी। घुघुती घुरौन लगी मेरा बैत की, घुघुती घुरौन लगी मेरा बैत की, बड़ी बड़ी ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की, डांडी काठियों पूरियों गौरी गे बोलू मेरा मैं तकू बण गौरी गे बोलू, डांडी काठियों पूरियों गौरी गे बोलू मेरा मैं तकू बण गौरी गे बोलू, चखुला घोलू छोड़ी उड़ना वाला, चखुला घोलू छोड़ी उड़ना वाला, बैठूला मैं थोड़ा तू बैठना वाला, घुघुती घुरौन लगी हो, घुघुती घुरौन लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की, ओ ऋतु ऋतु चैत की, डांडियों खिलना खुला बोरासी का फूल, पथ्यू है सनी होली फ्योली मूल मूल, डांडियों खिलना खुला बोरासी का फूल, पथ्यू है सनी होली फ्योली मूल मूल, फुलारी फूल पाती लेके डेलू डेलू जाला, फुलारी फूल पाती लेके डेलू डेलू जाला, दगड़ा बग्याने थड़ा चौफुला लगाला, घुघुती घुरौन लगी हो, घुघुती घुरौन लगी मेरा बैत की, बड़ी बड़ी ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की, ओ ऋतु ऋतु चैत की, तिवारी माँ बैठा हुला बाबा जी उदास, बाटू हेली होनी माँ जी लगी होली आस, तिवारी माँ बैठा होला बाबा जी उदास, बाटू हेली होली माँ जी लगी होली सांस, कब मेरा मैं तियो जी देसा भेटियाला, कब मेरा मैं तियो जी देसा भेटियाला, कब मेरा बहबेयों की
आला घुघुती घुरोण लगी हो घुघुती घुरोण लगी मेरा बैत की बड़ी बड़ी गिरी तू चैत की ओरी तू चैत की ओरी तू चैत की हरी तू चैत की। धन्यवाद। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंशु बरमूला आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति सॉन्ग प्रस्तुत कर रही हूँ जिसके के बोल हैं कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई लफ्ज़ जमते गए फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम न था सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों से रुसवा करा वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू।
हमारा गढ़वाल की कत करो तेरी स्वाणी छ हो कत करो तेरी स्वाणी छ पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक छन पंच प्रयाग यक छन पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक छन पंच प्रयाग यक छन पंच पांडव भी है नियक भाग हमारा धन धन भाग हमारा धन धन कुंड छिन यक ताल यक मटियक महान छिन मटियक महान छन ताल सहस्त्र घाटी फूलों की आसमान छन हो गंगा जमुना यक बेटी सबों की भूख तीस भुजाणी छ भूख तीस भुजाणी छ धरती हमारा गढ़वाल की कत करो तेरी स्वाणी छ डांडी काठियों का देख ले जा लग्यान ले जा लग्यान देवताओं की धरती माँ मन की बस्यान मन की बस्यान धरती हमारा गढ़वाल की धरती हमारा गढ़वाल की कत करो तेरी स्वाणी छ हो कत करो तेरी स्वाणी छ। धन्यवाद। साथी सेवानिवृत्त डॉक्टर सोहेल सिंह चौहान जी, मेरे संस्थान के साथी कार्मिक और स्टाफ और प्यारे में प्रशिक्षण। स्वतंत्रता दिवस इस बार में विशेष है क्योंकि हम अमृत महोत्सव की तरफ हैं और 75 वर्ष ही माना जाता है कि हमने पूर्ण रूप से अपनी आज़ादी को मना लिया। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते हैं, मैं उनकी तरफ न जा कर के किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। जिस चीज़ की हमें कमी जब होती है तो उसका पता हमें तब लगता है। जब तक कोई चीज़ हमारे पास है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। घर में जब तक बहन रहती है तो कोई वैल्यू नहीं है, शादी हो जाए तो पता चलता है। जब तक घर में माँ बाप हैं तो उनकी वैल्यू है, कहीं दाएँ बाएँ चले जाएँ या कुछ और हो जाए उनका पता चलता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको पाने के लिए आपको बहुत कुछ भी करना पड़ता है। फिर वही चीज़ इस आज़ादी के महोत्सव में है जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और 200 साल का संघर्ष है, तब जाकर भी हम इस स्थिति में आए हैं। ये स्थिति आनी ये हम सबके लिए सौभाग्य है, लेकिन हम इसको बनाए रखें ये बहुत जरूरी है। और बनाए कैसे रखें इसको? मतलब आपने प्रतिज्ञा ले ली, आपने नारे कर लिए, प्रभात फेरी निकाल दी, अच्छे भाषण भी हो रहे होंगे, लेकिन ये सब दूसरे के लिए होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं, अपने ऊपर कोई नहीं। तो हमारे जो अपने कर्तव्य अगर हम उनको सही कर ले जाएं तो वास्तविक मामलों में जो स्वाधीनता वो है जिसके लिए हम हैं। आप एक प्रशिक्षु हैं तो आपके क्या कर्तव्य हैं वो आप बेहतर जानते हैं। जब हमारी बात मैं यहाँ शिक्षक प्रशिक्षक हूँ तो मेरे को अपने कर्तव्यों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और कर्तव्य निर्वहन मुझे भी करना चाहिए। इसके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप रोज डाइट आएँ। अगर कोई मेरे को जिस प्रकार की बात बोल रहा है इसका मतलब मुझे अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है। तो सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा जो देश प्रेम वो है कि जो कुछ कार्य हमारे पास है जब जब मिले उसको हम पूरी भी कर्तव्य निष्ठा से अपने जो हमारी जो क्षमताएं हैं उसमें बेहतरीन उसका स्तर उसको संपादित उसको कर रहे हों और साथ ही साथ सभी को साथ लेके चलें, सहयोगात्मक हमारा भी रवैया हो और सामंजस्य कर सकें। सिर्फ जिंदगी को अपने तक नहीं सोचना। कई बार ये होता है कि व्यक्ति जो कुछ सोच रहा होता है उसे वो अपने फ्रेम में सोच रहा होता है, तो उस एक व्यक्ति की भी कमी से पूरा सिस्टम जो बाधित हो जाता है। जैसे आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम अगर हमारा वहाँ हॉल में हो रहा होता तो कितना अच्छा था।
अब हमने दूसरे को बहुत दे दिया, वो 10 बजे बोल रहा है हमें साहब हमें जरूरत नहीं है आपकी। तो जब जिस चीज़ में कमी होती है वैल्यू तब उसकी भी पता लगती है। इसलिए अच्छा आप सभी से ये निवेदन है कि भाई जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम बेहतर ढंग से भी कर रहे हों, जहाँ पर भी हम रहें बेहतरीन कार्रवाई कर रहे हों भारत के नागरिक के रूप में और साथ ही साथ मानवता के रूप में। अच्छा इन सभी बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। कहूँगा कि आप सभी एंजॉय करेंगे। पोएम का जो टाइटल है वो है बीवी कैसे मिले, बीवी वाइफ या पत्नी कैसे। और ये जो पोएम लिखी है इस पे मेरे साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं विचार उन्हीं से लिए गए। तो पोएम कुछ इस तरीके से है कि बीवी कैसे मिले। सीधा साधा फेस हो, शांति का संदेश हो, जीवन में कभी ना करे जो झगड़ा, बस इतना सा उसमें विशेष हो। सीधा साधा फेस हो, शांति का संदेश हो, जीवन में कभी ना करे झगड़ा, बस इतना उसमें विशेष हो। ओठों पर हो हरदम हंसी, मीठी सी हो बोली, बातें करे खट्टी मीठी जैसे नारंगी की गोली। ओठों पर हो हरदम हंसी, मीठी सी हो बोली, बातें करे खट्टी मीठी जैसे नारंगी की गोली। खर्चा करे उतना जितनी हो इनकम, खर्चा करे उतना जितनी हो इनकम, ताकि गृहस्थी में कभी ना आए आर्थिक भूकंप। खर्चा करे उतना जितनी हो इनकम, ताकि गृहस्थी में कभी ना आए आर्थिक भूकंप। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाए, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाए, हम पिए चाय वो पढ़कर अखबार सुनाए। अखबार सुनाए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। रसोई में बनाए हर रोज नए पकवान, रसोई में बनाए हर रोज नए पकवान, रसोई नहीं जैसे वो हलवाई की दुकान। और अवसर अवसर पर पैर छूकर दे हमको सम्मान, अवसर अवसर पर पैर छूकर दे हमको सम्मान, अवसर अवसर पर पैर छूकर दे हमको सम्मान, व्रत करे वो सारे जो पति को बनाए आयुष्मान। और जब जाए हम बिस्तर पर और व्हाट्सएप फेसबुक चलाएं, जब जाएं हम बिस्तर पर और फेसबुक व्हाट्सएप चलाएं, वो आके हमारे करीब हमारे पैरों को दबाएं। और जब भी जाए और जब भी दे आदेश तब ही मायके जाए, जब भी दे आदेश तब ही मायके जाए, मायके से ससुराल वो हमारी मर्जी पर आए। और तुरंत रहे तैयार, और तुरंत रहे तैयार जब लेने जाए हम ससुराल, तुरंत रहे तैयार जब लेने जाए हम ससुराल। आप लोग सभी जानते हैं पेट्रोल का क्या है हाल। बस इतनी सी है बस इतनी सी है अर्जी हमारी, बाकी गजानन मर्जी तुम्हारी। आज संपूर्ण देश स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, बलिदानियों ने हमें आज यह अवसर मनाने का मौका दिया, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ चीज़ें जरूरी आपसे जो कहना चाह रहा हूँ। हमारा स्वतंत्रता का इतिहास बहुत लंबा है। किस तरह से हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो है इस स्वतंत्रता के लिए किस तरह से अपने जीवन की आहुतियाँ दी, किस तरह की यातनाएँ सही, वो सब आपने इतिहास में पढ़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो हम कह रहे हैं कि विविधता होने के नाते भी अनेकता में जो एकता का हमारा भारत का मूल मंत्र है कि किस तरह से उस समय जो है लोग उन परिस्थितियों में एक हुए, पूरा देश एक हुआ, तब जाकर के कहीं जो है अंग्रेजों का मुकाबला कर पाया, जिनके बारे में कहा जाता था कि
दुनिया में जो है कभी अंग्रेजों के राज में सूर्यास्त नहीं होता, है ना। ये कहावत थी, ये इसलिए कहा गया था पूरे विश्व में उनका साम्राज्य था, है ना। तो उनसे मतलब इस तरह से, जबकि हमारी देश की किस तरह से लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ने की सुविधा नहीं थी, कुछ बड़ी नौकरी पाने की वो नहीं थी, इस तरह से जो है उन्होंने मतलब हर जगह जो है यहाँ के लोगों का दमन किया था। फिर भी लोगों ने वो उन महापुरुषों को याद करिए जिन्होंने किस तरह से जो है पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, सबको जो है एक साथ जोड़ा। तो उसमें तमाम लोगों की भूमिका रही है, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहा हो। मुख्यतः जयशंकर कवि थे, उस समय के लेखक थे, है ना, वकाल जो वकील लोग थे, मतलब जो भी थे सब ने उस समय जो है, जो हम वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं उसको, असहयोग आंदोलन था। तो वो यही था कि हर तरह से जो है अंग्रेजों की चीज़ों का विरोध करें, नौकरी वाले नौकरी छोड़ दें, है ना, या जो भी जिस स्तर पर है वकीलों ने वकालत छोड़ दी, है ना। उनके जो है वो नमक सत्याग्रह देखा होगा कि उनकी स्वदेशी चीज़ों, वो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। तो ये तमाम चीज़, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि कौन ऐसे लोग थे जिनकी बातों से देखो पूरा देश एक हुआ। आज हम देख रहे हैं कि अगर कोई हमारे बीच सही बात करने वाला है तो उसका सब विरोध करेंगे। आज जो है गलत का साथ देने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन सही का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहाँ से इस तरह की जो ये हमारे उसमें चल रही, मतलब क्या कहते हैं उसको, कमी, आखिर कहाँ से आ रही, जबकि आज हमको उन लोगों से जो हम कह रहे हैं कि हमें ये होना था कि सही काम के लिए सबको सही का साथ देना था, है ना। लेकिन आज क्या है कि हम कोई अगर सही कदम उठा रहा है तो उसके साथी कम है और गलत आदमी का साथ देने वाले ज़्यादा हैं, है ना। तो ये तो बात ये थी। दूसरा क्या है कि ईमानदारी। आप देख रहे हैं इस समय देश के अंदर क्या हाल है ना। खुद उत्तराखंड का आपने देखा होगा इस बीच विगत 1 महीने से क्या स्थिति, अब जाकर हो रही। तो क्या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी या जिन्होंने इस देश को आज़ाद दिलाया, जिनके बलबूते पे आज हम जो है मतलब सारी सुख सुविधाएँ ले रहे हैं, तो उनका क्या यही सपना था कि हमारा जो है आज़ाद भारत इस तरह का होगा, है। तो देखिए वो सब क्या है, आज हम अपोज नहीं कर रहे हैं गलत काम का। अगर कोई हमारे सामने गलत काम कर रहा तो हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसका विरोध कर सकें। और वही कारण है कि धीरे धीरे क्या होता है, सब जो है गलत का साथ देना शुरू कर देते। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमको गलत बात का मान लो, इसलिए हम उत्तराखंड के अभी जो उसका परीक्षाओं में धांधली वाली बात है, तो उसमें देखिए क्या धीरे धीरे क्या हुआ, सब जुड़ते गए। जबकि क्या होना चाहिए था, लोगों को उसका विरोध करना चाहिए था जो लड़के उसमें थे, और उनको तो लेकिन उन्होंने भी क्या किया, गलत का साथ दिया, बोला यार ये सरल रास्ता है, अपना इसी रास्ते को अपनाओ, है। तो आज हम कह रहे हैं कि भाई हम क्या किस तरह का जो है अपना देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, है ना। ये यहीं पर नहीं पूरे देश के अंदर है। अभी इसलिए उसमें आंकड़े आए थे कि साउथ एशिया में जो है भ्रष्टाचार में हमारे देश का 4था स्थान है। अब बताइए कितनी शर्म की बात है ना। और हम कह रहे हैं कि हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा निश्चित रूप से, विकास के मामले कुछ अच्छे भी हो रहे हैं। लेकिन हमने कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा जो आज हमारी नई पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है, वो क्यों इस तरह के मतलब उनके अंदर इस तरह के जो है वो क्यों नहीं वो हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा में कहीं खोट है या दोष है जिसके कारण इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो क्या होना चाहिए था कि लोगों को ईमानदारी से, जो हम कह रहे हैं कि भाई जो जिसकी अगर वो अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करता है तो निश्चित रूप से दूसरा भी उससे प्रेरणा लेगा, है ना, वो भी ईमानदार होगा। तो कहीं ना कहीं जो है, तो मेरा ये कहना है कि हम ईमानदारी से अपने कार्य को करें तो निश्चित रूप से दूसरा भी हो न हो, आज नहीं तो कल एक न एक दिन जो है उस बात को जो है जरूर स्वीकारेगा और आपसे प्रेरणा लेगा। तो तब जाकर के कहीं जो है हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी जो है कहीं ईमानदारी आएगी। तो अधिक न कहते हुए मैं डाइट परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आपके बीच आया और उन्होंने मेरा यहाँ पर जो है मुझे सम्मानित किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ
आप लोगों से सीखने को मिला, देखने को मिला कि इस तरह के निश्चित रूप से आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर इस तरह के आप जैसे बच्चे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है शिक्षा में अच्छा करेंगे और आने वाली पीढ़ी को जो है ईमानदारी की ओर जो है निश्चित रूप से उनको जो है ले जाने का काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव का बहुत काम हुए हैं पूरे भारत में, उत्तराखंड में भी बहुत काम हुए हैं। शिक्षा में आप देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ बराबर सुनते आ रहे हैं। आज ये प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम चल रहा है, मिशन कोशिश संदेश में भी आपने सुना। इसके अलावा बहुत बड़ी उपलब्धि बाल वाटिका प्रारंभ हुआ, हम सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पे इजाज़त चाहेंगे एक गीत। देशभक्ति का ही गीत है, पुरानी फिल्म से है। कोशिश करेंगे कि वो समझ पाए। काबली वाला फिल्म से है। हमें अपने वतन पे गर्व है, भारत में रह रहे हैं, विविधता का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ रहते हैं। जातियाँ तो हम ही लोगों ने बनाई है, विशेष रूप से हम भारतवासी हैं। तो इसी का एक गीत है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम,
मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। है मेरे बिछड़े चमन, है मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्योंकि दो चार नारे लगाए थे तो जो है गीत लायक कला नहीं है। भूषण कुमार जितनी याद है कोशिश करेंगे, बीच में अगर भूलते हैं तो आप लोग याद दिला रहे हैं। तो भूषण कुमार की एक कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो है आप लोग भी साथ गाएं, क्योंकि जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो उसमें मिलकर रहेंगे तो मुझे लगता है कि आवाज़ बेहतर हो जाएगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पे, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना
बदलनी चाहिए। अपनी तो कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अपनी तो कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अपनी तो कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। 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 हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब जैसा कि कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, उद्घोषक महोदय द्वारा कह दिया गया है, तो थोड़ा सा हम कमर सीधी कर लें अपनी उम्र को। ठीक है, बस कुछ ही समय है, 1-2 मिनट की बात है। और अपने आलस्य को थोड़ा सा, जैसे हम अपने हाथ धोने के बाद ऐसे छिड़कते हैं, ऐसे करते हैं एक साथ 1 2 3 जो तो सर्वप्रथम तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारे बीच सेवानिवृत्त डॉक्टर चौहान जी का मैं डाइट में स्वागत करना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस की इस बेला पर आप हमारे बीच में उपस्थित हुए। आपका स्वागत है। हमारी डाइट की फैकल्टी, प्यारे बच्चों, आज आपके द्वारा जो प्रस्तुतियाँ की गई हैं वाकई में काबिल तारीफ है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। सभी बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हमारे डाइट के फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा भी अपने विचार रखे गए। प्राचार्य शब्द के लायक मैं अपने आप को महसूस नहीं करता हूँ। प्राचार्य शब्द बहुत बड़ा शब्द है, विद्वान जनों के लिए लगने वाला शब्द है। तो मैं तो अपने आप को प्राचार्य नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को सहयोगी मानता हूँ। और जितने भी मेरे डाइट के विद्वान साथी हैं उन सब में मैं अपने आप को सबसे पीछे खड़ा मानता हूँ, पाता भी हूँ। वास्तविकता ये है, गांधी नृत्य देखने को मिला बहुत पहले। जब मेरी जौनपुर में पोस्टिंग थी तो वहाँ समय समय पर कार्यक्रम हुआ करते थे। अक्सर मिला इस प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलते थे। हमारे प्यारे बच्चों ने अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपका नाम क्या पूरा? हाँ, प्रगति चमियारी। प्रगति का जो कार्यक्रम था इंडिविजुअल बहुत अच्छा रहा। और जो भाषण और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो विचार रखे गए वो भी काबिल तारीफ थे। मैं सभी की प्रशंसा करता हूँ। और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनसे भी मैं अपेक्षा करूँगा कि वो भी मंच पर आकर निश्चित रूप से अपने विचारों जरूर रखें, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा लीडर भी होता है। उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप इस मंच पे नहीं आएंगे और इस माइक को हाथ में नहीं पकड़ेंगे तब तक आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। तो पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की आप सभी को मुबारक हो। बहुत से विचार आए,
सभी बातें हो चुकी हैं। हमने माननीय अपने शिक्षा मंत्री जी के विचार भी आपके सामने पढ़े, अपनी डायरेक्टर मैडम के विचार भी पढ़े, सभी लोगों के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। कुछ एक दो शब्द मैं भी बोल देता हूँ, मुझे भी अवसर दिया गया है। वास्तव में जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है वो काल खंड अब जो है वो समाप्त हो गया है। अब आज़ादी के बाद का स्वतंत्र भारत का कालखंड है और इस कालखंड में जो जिम्मेदारियां हैं वो आज के युवाओं के ऊपर है। युवा, स्टूडेंट और देश की सम्मानित जनता, ये सब मिलके ही इस देश की प्रगति में सहभागिता कर सकते हैं। निश्चित रूप से यदि देश प्रगति करेगा तो हमारी प्रगति भी होगी। देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो हम अच्छी सुख सुविधाओं के साथ जीवन यापन करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, गरीबी का उन्मूलन होगा, भुखमरी का उन्मूलन होगा। और ये तभी संभव है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है, आप ये जरूरी नहीं है कि अभी जैसे हमारे साथी हैं मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि भाई गोली खाना, फांसी पे चढ़ना और बम फोड़ देना, ये कालखंड खत्म हो चुका है। अब जो कालखंड है उसमें हमारी जिम्मेदारियां हैं इस देश की प्रगति को, इस देश को आगे ले जाने की। वो तभी संभव है जब हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का अनुपालन करें। अब रही बात ईमानदारी की, ईमानदारी की परिभाषा बहुत बड़ी है। ईमानदारी, आपने अपना दैनिक जीवन जो जी रहे हैं, आप स्टूडेंट के रूप में जी रहे हैं, हम कर्मचारी अधिकारी के रूप में जी रहे हैं, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वो अपने काम को ईमानदारी के साथ करे, यही बहुत है। अगर वो अपने काम को ईमानदारी के साथ करता है तो यही बहुत है। इसी से ही जो आउटपुट आएगा उसके निश्चित रूप से परिणाम दिखेंगे। हम अपने घर के आसपास हैं, साफ सफाई का ध्यान रखें, लोगों को जागरूक करें। यदि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का प्रसार करें, लोगों को गाइड करें, जो समस्याएं हैं उनका निदान करने में सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। ठीक है ना। वो जो विचारधारा है कि भगत सिंह तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में, वो अब हमें बदलनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हर व्यक्ति को लड़ना है, भिड़ना है, लेकिन हम अपने जो हमारे दायित्व हैं उनका सही प्रकार से निर्वहन कर लें, यही काफ़ी है। आप लोगों का ध्यान मैं विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी ओर ले जाना चाहूँगा। आज हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में, ये एक अच्छी बात है कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो विदेशी सामान का बड़ा चाव रहता था। जो आज ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उस ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चीज़ आज अमेरिका में बन रही है वो अगले दिन आपको दिल्ली में या आपके शहर में भी मिल जाएगी। लेकिन जब हमारा समय था तब ये चीज़ें नहीं थी। एक तिब्बती मार्केट देहरादून में लगता था, इंदिरा मार्केट में, वहाँ पे शोकेस लगा के रखते थे कि विदेशी सामग्री है। वो आते थे इतने रिकॉर्ड प्लेयर कि ये जापान का है, तो अलग ही चाव रहता था, भीड़ लगी रहती थी बाजार में कि विदेशी सामग्री खरीदनी। आज ऐसा नहीं। आज आप चाहें, आप सैमसंग का जो मॉडल आपको जापान में, अमेरिका में मिलेगा, उस आपके मार्केट में यहीं बड़कोट में भी मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात कहने का जो तात्पर्य है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन बना है तो इसमें हमारे देशवासियों का या हमारे वैज्ञानिकों का कितना बड़ा हाथ है। आप इस चीज़ को देखिए। क्या आप मानते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन बना है तो इसमें हमारा हाथ है? मुझे नहीं लगता। देखिए, हम सिस्टम की बुराई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहीं रहना, इसी देश में रहना है। कल को अगर अच्छा होगा तो उसके भोगी भी हमें, यदि कभी बुरा होगा तो उसके भोगी भी हमें।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, रशियन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत चला करती थी। आपको पता होगा टिहरी डैम भी जो है रशियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे कम से कम उसी रोड पे पूरे 5-6 किलोमीटर के अंदर DRDO के 4-5 कल कारखाने हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय कोई फैक्ट्री बंगाल से शिफ्ट होके यहाँ आई, वहाँ पे ज़्यादा समस्या थी तो उसको शिफ्ट कर दिया गया 1942 में। वहाँ जब हमने वहाँ की, क्योंकि आसपास के लोगों से बातचीत होती रहती थी, जब हमने वहाँ देखा तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे टोटल नकल होती थी। एक बाइनोकुलर आया, उस बाइनोकुलर को खोला गया और उसके पार्ट्स को जज किया गया और उसकी नकल की। उसमें ना तो अपग्रेडेशन हुआ, ना उसमें टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन हुआ, तो हम कुल मिला के टेक्नोलॉजी की नकल करते रहे। अब आप ये बताइए कि अगर हम दूसरे की टेक्नोलॉजी की नकल करेंगे तो आपके उस नकल वाले प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी? विश्व में कोई लेगा उसको? आज परिस्थितियां बदली हैं। आज आप देखेंगे कि आज तेजस नाम का फाइटर प्लेन हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित किया। आज जब विदेशों में जब प्लेन्स देखने के लिए जो बाजार लगता है तो वहाँ आपका एक तेजस फाइटर जेट खड़ा है, अभी शुरुआती दौर है। तो जो देश हैं वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों? आपकी टेक्नोलॉजी सस्ती है। सस्ती टेक्नोलॉजी और अच्छी सस्ता माल और अच्छा माल मार्केट में बिकता है। तो ये देखेंगे कि वर्तमान समय में परिस्थितियां बदलने लगी हैं और इन परिस्थितियों को बदलने में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसको हमें आगे ले जाना है। ये जो अमृत काल है ना, इस अमृत काल को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो हम विकसित देशों से सीखें कि उनकी जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी एक आलस्य के मामले में एक सर्वे हुआ था विश्व में, तो हम बहुत ऊपर थे उसमें, तीसरे या चौथे नंबर पे। जो इंडियंस हैं वो जो कहते हैं कि आलसी लोगों की जो सर्वे की गई, तो उसमें हमारा भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा, तीसरे या चौथे नंबर पे हम रहे। तो खैर ये भी है, अब आप लोग शिक्षित हैं, अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानते हैं, कर्तव्यों को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी आने वाली है वो तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भाई शिक्षा किसी का भी भविष्य बदल सकती है। अगर किसी को अपना भविष्य बदलना है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। गरीबी से बाहर निकाल सकती है अशिक्षा, ठीक है ना। आपको योग्य नागरिक बना सकती है, भावी अच्छा नागरिक बना सकती है तो शिक्षा। तो आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आपका बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें और बहुत अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम आज इस अवसर पर हमें देखने को मिले। मैं सभी डाइट फैकल्टी का बहुत अच्छी तरीके से वो तैयारी DLED प्रशिक्षुओं की करा रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने प्रशिक्षुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी लगन और मेहनत ईमानदारी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न कराया। और बीच बीच में हंसी के ठहाके भी लगे, उसके लिए भी लोग आप सभी का धन्यवाद। और मेरे मन में ये भी विचार आ रहा था, अभी हमारा एक प्रशिक्षु नवीन है, उसने बहुत अच्छी कविता कहें या जो भी आप कह सकते हैं, वो सुनाए कि भाई आपको बीवी चाहिए, तो बीवी अगर चाहिए तो आप अपनी टीम के विचार बदलिए, तभी बीवी मिलेगी। और बहुत जल्दी अगर शादी करनी है और बीवी चाहिए तो उसमें पात्र बदल दीजिए। आपका पात्र कौन कौन से पात्र थे आपके? कहाँ नवीन? हाँ, कौन से पात्र थे आपके? नहीं, आपकी कविता का पात्र कौन था? एक मतलब आपने बीवी की कल्पना की और एक अपनी कल्पना की, दो पात्र थे ना उसमें।
तो उन पात्रों को बदल दीजिए, बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। जो भी है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद।